Praise God. یسوع مسیح ناصری کے بابرکت خوبصورت اور جلالی نام میں تمام مقدسین کی سلامتی ہو. آمین. میرے ساتھ نکالیے گا دا بک آف ایکسڈس چیپٹر نمبر 20 اور ورس نمبر 12 میں سے آج سیکھیں گے. دا بک آف ایکسڈس خروج کی کتاب نئے عہد نامہ کی یہ دوسری کتاب نہیں ہے, یہ پرانے عہد نامہ کی دوسری کتاب ہے. پرانے عہد نامہ کو دیکھیں اور میرے ساتھ کھولیں. پرانے عہد نامہ کی بائبل مقدس کے سٹارٹ میں آپ دیکھیں پیدائش کے بعد خروج کی کتاب اور اس کا 20واں باب چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 12 کی ہم تلاوت کو سنیں گے. ہمارے درمیان میں خدا کی خادمہ ہے ایونجلسٹ مسز خرم کے ساتھ مل کر ہم خدا کی زندگی بخش کلام کو سنیں گے. ہاللیلویا. خدا کے پاک کلام میں سے خروج کی کتاب اس کا 20 باب اور 11 آیت. کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور 7ویں دن آرام کیا. اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا. آمین. 12ویں آیت بھی. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. آمین. آمین. تھینک یو. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. خدا ان کا شکر ہو کہ خدا نے ہمیں خوبصورت کلام کو سننے کا خدا نے ہمیں موقع دیا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کلام کو سننا ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے, یہ شرف کی بات ہے کہ ہم کلام کو سنتے ہیں, کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو یہوہ پاک خدا کے پاک منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. اور یہ وہ کلام ہے جو ہماری حالتوں کو بدلتا ہے, ہماری زندگی کو چینج کرتا ہے, ہماری زندگی کے طرز کو جلال سے کلام بھرتا ہے. انسان خود نہیں کر سکتا. ہاں کچھ کام ہیں جو انسان سوچتا ہے کہ میں خود کرتا ہوں, یعنی کھانا بنانا, کام کرنا, جاب پر بیٹیاں بیٹے جاتی ہیں اور پیسے کو اکٹھا کرنا, گھر بنانا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہم خود کر سکتے ہیں, ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے کندھوں میں یہ زور ہے, ہم یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن جلال کو ہم اپنے زور سے اپنے اندر اپنی زندگی میں نہیں لے سکتے. ہمارے اندر جلال اور مسا خدا کی طرف سے آتا ہے. جب خدا ہاتھ بڑھاتا ہے تو انسان کی زندگی جلال سے بھر جاتی ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ کیسے وہ دن ہوں گے جب پطرس ابھی رسول نہیں بنا تھا اور وہ مچھلیوں کا شکار کرتا تھا, لیکن ایک سیکنڈ میں جب مسیحا پطرس کی زندگی میں آتا ہے تو اس کی زندگی جلال سے بھر جاتی ہے. اس کا پروفیشن چینج ہو جاتا ہے, اس کا کردار تبدیل ہو جاتا ہے, اس کی زندگی ٹوٹلی بدل جاتی ہے. اور یسوع کہتا ہے کہ آج سے تو مچھلیوں کا نہیں بلکہ میں نے تجھے اپنے جلال سے بھر دیا ہے, میرے جلال سے تو روحوں کا شکار کرے. یسوع کے جلال کے لیے تعلیم آ رہے ہیں. آمین. ہمارا جیزس خوش ہے کہ میرے بچے میرے لیے تالی بجاتے ہیں. یسوع بادشاہ کس کس کا ایمان ہے کہ یہاں پر موجود ہے؟ ہمارے درمیان ہمارا بادشاہ, ہمارا لاڑا, ہمارا شافی ہمارے درمیان موجود ہے. اور آج کا جو دن ہے یہ بھی دن ہمیں کسی انسان نے نہیں بلکہ ہمارے آسمانی باپ نے ہمیں آج کا دن دیا ہے. اور آج پوری دنیا میں ایک خاص ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اور میں چاہتا ہوں کوئی سب سے جو چھوٹا بچہ ہے جسے پتا ہو وہ آگے آئے تاکہ مائک میں ہم ان سے پوچھیں گے. جی یہاں پر چھوٹا اسمال بیبی کوئی ہے؟
कहाँ गया है वो? यीशुआ कहाँ है? यीशुआ को जी भेजे आज आगे, तो ताकि हम उनसे पूछे कि आज कौन सा दिन है। तो अगर तो यीशुआ को पता हुआ तो इसका मतलब है कि हम सबको पता है। बेटे माइक ये माइक ले, माइक में बोलेंगे कि मेरा बेटा कहना होता है पैसे से माइक नहीं देने, माइक में बोले प्लीज। मदर्स डे। ताली बजाएंगे। आज मदर्स डे है और हम सब जानते हैं कि आज का जो दिन है ये खास है हम सब के लिए, किसी एक शख्स के लिए नहीं है। जो माँ है उसके लिए भी खास है, क्योंकि वो माँ भी किसी माँ से पैदा हुई। कई दफा प्यार करते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स से, माँ से, तो माँ कहती कि मैंने में किसी माँ ने जन्मे, मैं भी उतना बड़ा प्यार कर रही। तो आज का जो दिन है ये हम सब के लिए एक खास दिन है। आज हम कलाम की रोशनी में सीखेंगे कि ये जो मदर्स डे है ये बाइबल इसके ताल्लुक से हमें क्या बताती है। जब खुदा ने मूसा को पूरब के पहाड़ पर बुलाया और खुदा ने कहा कि तू बड़ी कौम की फिक्र ना कर, उसे शुरू से मैंने संभाला है, मैंने इस्राएली कौम को मिस्र की गुलामी से निकाला, हाँ तुझे मैंने रहनुमा बनाया है, तुझे मैंने राहबर बनाया है बड़ी कौम का, लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं इसके ऊपर हाथ बढ़ाऊंगा, आजा मेरे पास पहाड़ पर, आपा यार बेलिए थे गला करेंगे। और 40 डेज खुदा ये मूसा से बात करता है और मूसा खुदा की जलाल को वहां पर खाता है, ना सोता है ना ऊँगता है। और यीशु के साथ, बाप के साथ, बाप के अंदर उस वक्त जीसस था, बाप के साथ और जीसस बेटे के साथ भी, और खुदा पाक रूप के साथ बातें करता है। कौन? मर्द खुदा मूसा। और जब मूसा बाप के साथ गुफ्तगू करता है तो बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि उस वक्त खुदा ने मूसा को खूबसूरत 10 हुक्म बख्शे। मूसा को कितने हुक्म बख्शे? आपा बताने कटाने नहीं है, अपनी गलती बता कटा सकते। जो हुक्म खुदा ने दिए वो 10 ही थे। तस्वीर बड़े छोटे सा संडे स्कूल में भी सीखते होते थे कि मूसा को खुदा ने 10 हुक्म दिए। आज भी ऐसे ही है, क्योंकि कलाम हमेशा यकसा है। और 10 हुक्मों में से एक बड़ा खूबसूरत हुक्म था। देखिए, इतना खुदा अपने बच्चों से प्यार करता है कि खुदा ने अपने बच्चों को बरकत लेने का तरीका सिखाया और मूसा से कहा कि जा मेरी कौम को बता कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। ये जो रिस्पेक्ट है बेसिकली ये हेवन से उतरी है पेरेंट्स के लिए। माँ बाप के लिए इज्जत का हुक्म किसी इंसान ने नहीं। ये दुनिया का दिन तो हम सब जानते हैं खुदा के लोगों ने मुकर्रर किया और हम बड़ा खुश हैं और थैंक्स लॉर्ड कि ये दिन मुकर्रर हुआ है। अगर ये माओ का दिन मुकर्रर ना होता तो असी खुद एक दिन मुकर्रर कर लेना सी साल दे। पेरेंट्स को ये अच्छा एक और चीज है, किसी को पता है ये दिन क्यों मुकर्रर हुआ? फादर्स डे, मदर्स डे क्यों मुकर्रर हुआ? इसका जो खास मकसद या पर्पस है वो कलाम को पूरा करना है। जिस तरह खुदा ने मूसा से कहा कि जाकर मेरी कौम को बता कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। हम ये दिन इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि पेरेंट्स की क्या कदर है। माँ की, मदर की वैल्यू को बताने के लिए, औलाद को माँ बाप की वैल्यू बताने के लिए ये दिन जो है ये मुकर्रर हुआ। हम क्यों क्रिसमस साल हर साल मनाते हैं? ताकि आवन वाले पुष्ट नू रब दी खबर सुनावांगे, ताकि हमारे बच्चों को, यंगेस्ट पीपल्स को, टीनेजर्स को, अडल्ट्स को पता चले कि एक दिन था कि यीशु बादशाह इस जमीन पर पैदा हुए थे। इसी तरह कुछ लोग
इन दिनों के भी खिलाफ सोच रखते हैं, आज मैं उन्हें बताना चाहता हूँ बेसिकली ये जो दिन मुकर्रर होते हैं इसलिए होते हैं ताकि हम इसका मतलब समझ पाए। पेरेंट्स की वैल्यू को समझना बड़ा जरूरी है। कई दफा आपने शायद सुना हो, लेकिन मेरे कानों तक ये आवाज पहुंची, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि हमारा बाप हमारे नाम से पहचाना जाएगा। लेकिन मैं आज उन बच्चों को कहना चाहता हूँ, आप जितनी भी मेहनत कर लें आपको खुदा ब्लेस करेगा, लेकिन माँ बाप कभी भी आपके नाम से नहीं पहचाने जाते, बल्कि आप और मैं, हम खुद यीशु के जैसे लोग होते हुए जीसस ने जो हमें मुकद्दस रिश्ता बख्शा पेरेंट्स का, हम जितने मर्जी बड़े हो जाए हम हमेशा अपने माँ बाप के नाम से ही कहलाते हैं और पहचाने जाते हैं। खुदा ने मर्द खुदा मूसा से कहा कि तू जा मेरी कौम को बता कि अगर बरकत लेनी है, मेरे बच्चों ने ब्लेस्ड होना है, तो उन्हें पेरेंट्स की इज्जत करनी पड़ेगी, पेरेंट्स की कदर करनी पड़ेगी। आज स्पेशली जितने हमारे यहाँ पर छोटे बच्चे हैं और कुछ हमारे ऐसे भी बुजुर्ग हैं कि वो खुद भी बुजुर्ग हैं लेकिन हाले तक उन्होंने माँ उन्होंने कोल है। कुछ ऐसे भी हैं, मुझे शायद कुछ बता रहा था कि मेरी जी नानी जी है वो कोई 70-80-90 साल की हाले भी है, तो प्लीज़ बेटी भी हमारे पीछे हाथ खड़ा कर रही है। और ये खुदावन का शुक्र है कि खुदा ने हमारे बुजुर्गों को सलामती बख्शी। सबके लिए ये मैसेज है, हर शख्स के लिए मैसेज है, और ये मैसेज सिर्फ चर्च की हद तक नहीं है या आज के दिन तक नहीं है, ये मैसेज पूरे साल के लिए, हमेशा के लिए खुदा हमें देता है कि हमें पेरेंट्स की इज्जत करनी है। ये बरकत लेने का तरीका है। माँ बाप के बगैर इंसान इस दुनिया में नहीं आ सकता। ये खुदा के प्लान चेक करें कि बंदा कई दफा थोड़ा देर बड़ा हो जाता है तो वो कहना शुरू कर देता है कि जी मैं बाप से बड़ा हूँ, मैं माँ से बड़ी हूँ। कई दफा खास तौर पर बेटियां जो थोड़ी सी बड़ी हो रही होती है तो वो कहती अम्मी तेनू पता ही नहीं है, वाल खुले छड़ने चाहिए, तेनू पता ही नहीं है घुट घुट दुपट्टा लै रही है ते गले च पाईदा है। कई दफा आपने सुना ऐसे भी हमारे बच्चे पेरेंट्स से बात करते हैं। लेकिन अजीजों याद रखिए, जो छोटे हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और आज हमारे संडे स्कूल के बच्चे भी हमारे दरमियान में शामिल हैं, जितने भी टीनेजर्स हैं, जितने भी हमारे छोटे बच्चे हैं, सबको मैं बताना चाहता हूँ, जो शख्स याद रखिएगा, एक बड़ा खास रात को मैं प्रेयर में था तो मेरे दिल में खुदा पाक ने ये कलाम पैदा किया कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँ। जो शख्स, जो बेटी या जो बेटा अपने बाप या माँ का मुकाबला करता है वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कई दफा बच्चे अपने पेरेंट्स का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं कि मेरी माँ नहीं सोनी, मैं बहुत ही सोनी है, तो तू आई कितों है। इधर बच्चे कहते ना अम्मी दे कान नहीं बड़े अंजदे ने। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि रूटीन में ये बातें हम सुनते भी हैं और पेरेंट्स को कई दफा बच्चे डिसहार्ड करते हैं कि अम्मी नूं ते बोलण दा भी नहीं पता है। वो साडे स्कूल मदर्स डे सी ते अम्मी गई ते अम्मी ते हंसी गई है। बच्चे इस तरह की बातें करते हैं, साडी मां नूं गल नहीं करना आती। मैं आज उन बच्चों को बताना चाहता हूँ, एज ए खुदा का खादिम होते हुए मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, याद रखें आपकी माँ जैसी भी है वो आपकी माँ है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। और ये एक रियलिटी है, जो बच्चे पेरेंट्स की कदर नहीं करते एक वक्त आता है जमाना भी उनकी कदर नहीं करता। और बेशुमार दुनिया के अंदर बच्चे रुलते क्यों हैं, आपको पता है उसकी रीजन क्या है? तालीम बहुत ही ज्यादा उनके पास है क्योंकि माँ बाप ने मेहनत की थी, उन्हें तालीम मिल गई, तालीम उनके पास बहुत ही ज्यादा है, लेकिन उन्होंने माँ बाप की इज्जत नहीं की
جس کی وجہ سے وہ بچے دنیا میں خوار ہوتے. میں جب بھی بائبل مقدس میں یہ قصہ پڑھتا ہوں کہ آج اگر ہم اسرائیل کا نام لیتے ہیں, اور یاد رکھیں یہ نام مبارک نام ہے, اسرائیل کا نام مبارک ہے, اسرائیل کا نام منہ سے لینا مبارک ہے. آج اگر ہم اسرائیل کا نام کہتے ہیں مبارک ہے تو این سے مبارک نہیں بنے ہیں. اسرائیل دے نا دے پیچھے بھی بڑا ایک لاجک ہے دے. ماں کا ایک بڑا کردار ہے. ماں کو پتا تھا کہ اگر یعقوب کا باپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے گا تو میرا بیٹا بدل جائے گا, اس کی نسلیں, اس کی پشتیں بدل جائیں گی. تو ماں کے دل میں یہ بوجھ پیدا ہوا, اور میں سمجھتا ہوں ماں کی کاوش سے خدا نے شاید ماں کی تڑپ کو دیکھا تو یعقوب کو چنا, حالانکہ وہ دھوکے باز تھا. لیکن ماں کی تڑپ کو دیکھیں کہ ماں کی تڑپ کو دیکھ کر خدا کئی دفعہ ہمیں چن لیتا ہے, اور چننے کے بعد پھر خدا ہمارے کردار کو بدل دیتا ہے. ہم زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں, رینگرے ہوتے ہیں, لیکن ماں دی دعا ایسی ہے اس کے وسیلے خدا ہمیں تخت پر بٹھا دیتا ہے. یعقوب کو خدا نے کہا کہ میں نے تجھے چن لیا ہے, تیری ماں نے تیرے پیچھے بڑی محنت کی ہے, تینوں برکت ملن دا راز تیری ماں ہے. اگر تیری ماں نہ ہوندی تو کدی تینوں برکت نہ ملتی. اس لیے سب سے پہلے میں تیری ماں پر نگاہ کرتے ہوئے تیرا نام بدلوں گا اور تجھے مبارک نام دوں گا. اس نام کے وسیلے قومیں, امتیں برکت پائیں گی. آج وہ بیٹیاں بیٹے جو چاہتے ہیں کہ وہ لائف میں بلیس ہو جائے, فرسٹ آف آل عزیزو ہم نے ماں کی ویلیو کو سمجھنا ہے. آپ کی, جیسے میں نے آگے سادگی سے بتا رہا تھا کہ آپ کی ماں کیسی بھی ہے, وہ گوری ہے, وہ کالی ہے, وہ بڑی ہے, اس کا قد بڑا ہے یا قد چھوٹا ہے, جیسی بھی ہے, ماں ماں ہے. اور ماں کو سمجھنا, ماں کی قدر کرنا, میں سمجھتا ہوں ایک مقدس بات ہے. اگر آپ غیر قوموں کو دیکھیں, بائبل مقدس میں جس طرح خدا نے مرد خدا موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ میری قوم کو کہے کہ اگر انہوں نے برکت لینی ہے تو پیرنٹس کی, باپ کی بھی, ماں کی بھی عزت کرنی ہے. غیر قوموں کو آپ دیکھیں, ہمارے کلام کو غیر قومیں پورا کر رہے ہیں, پیرنٹس کی عزت کرتے ہیں دل سے. ہمارے بچوں میں خاص جو پرابلم ہے کہ جو ہی وہ تھوڑا سا بڑا ہوتے ہیں وہ اپنے ماسی کو بھول جاتے ہیں کہ ماسی اینتا سی ساڈا کہ گھر دے وچ بالیاں دی چھت سی, تو وہ بھی جب بارش ہوتی سی تے اوتھے بارش میں اندر کمرے چ آ جاتا سی. وہ بھول جاتے ہیں یہ بات. خاص طور پر جو ہماری بیٹیاں غیر مذاہب کے اندر دلچسپی رکھتی ہے اور غیر مذہب کے اندر چلے جاتی ہیں اور پسند کی شادیاں کروا لیتی ہے, آن لائن بھی میں انہیں یہ لیسن دینا چاہتا ہوں. بیسیکلی وہ بچے ماں باپ کی قدر کو بھول جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ساڑا گھر تے بڑا سادہ ہے, ہمارے پاس تو رہنے کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے, ہمارے پاس کھانے کے لیے اچھی چیزیں نہیں ہیں, میری ماں پڑھی نہیں ہے. تے تہاڈی ماں پڑھی ہوئے گی تے پھر تسی کیڑے پیلٹ لگ جانا ہے, وہ تو آپ نے اپنی محنت کرنی ہے نا. ماں بیسیکلی پیچھے پریئر کرتی ہے, باپ پیچھے پریئر کرتا ہے. سکسس جو ہے وہ ہیون سے آتی ہے. بندہ خود اپنی عقل سے, اپنے زور سے, اپنی طاقت سے کچھ نہیں حاصل کر سکتا. کیوں آج ہم یہ بولتے ہیں, کیوں ہم کہتے ہیں کہ بڑوں کی عزت کریں؟ سارے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آج آپ کو ایک خاص بھید میں بتانے لگا ہوں. جس طرح ہمارے بڑے گزرے, جو بزرگ گزر چکے ہیں, ہمارے بڑے تھے, کچھ بزرگ ہمارے درمیان ہیں, خدا انہیں صحت مند لمبی زندگی دے, تو بڑے کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ماں باپ دی آندرا دی دعا لگ جاندی, اور جو انتڑیاں ہیں پنجابی جنہوں نے آپ آندرا کہنے ہیں, وہ تے بول دیا نہیں, تے انہاں دی دعا پھر کس طرح لگ دی ہے. بیسیکلی بڑوں کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بچے پیرنٹس کے وفادار ہوتے ہیں, تابعدار ہوتے ہیں,
तो उनके हार्ट से प्रेयर निकलती है, उनका दिल भी कहता है, उनकी सोच भी कहती है, उनकी अंतड़ियां भी कहती है, उन्होंने अंतरा दे दिल बोल दिया कि ये बच्चा ब्लेस हो जाए, और खुदा उस बच्चे को ब्लेस कर देता है। ऐसा है। मैं चाहता हूँ प्लीज आप सिस्टर जी चेयर पर आए, बस साथ चेयर पर हो गया, बस ये प्लीज आप चेयर पर बैठे, ये प्लीज आप, ताकि ये रास्ता जो है ना आप चेयर पर आ जाए, और जितने भी बाहर हैं सारे मैं चाहता हूँ अंदर आ जाए, जरा अंदर जगह है। फुफू जी आज ਤੁਹਾਡੇ वास्ते कुर्सी पई हुई जी, बाकी सारे जरा मैं चाहता हूँ प्लीज जितने भी हैं बेटे थोड़े थोड़े बच्चे आगे हो, महक बेटे सारे प्लीज बेटे आप भी बहन के साथ आगे आ जाए, जगह हमारे पास कम है, और खुदा उनका शुक्र है, खुदा ने कलीसिया को बहुत बढ़ा दिया है। और मैं आज बताना चाहता हूँ कि ये कलीसिया जो है ये इतनी नहीं रहने वाली। आज आप देखेंगे अपनी आंखों से, अपने कानों से सुनेंगे कि एक कलीसिया की कौमा उमतर चले गई है। खुदा ऐसा जल्द करने वाला है, और खुदावंद यीशु के फजल से ऐसा हो चुका है। आज सारे जो बाहर है प्लीज अंदर आ जाए जरा, मैं चाहता हूँ ताकि जो बाहर बैठी है लोग आ रहे वो इजी यहाँ पर बैठ सके। और अभी हम दुआ कर रहे हैं खुदावंद सामने एक बड़ा गिरजा दे, जहाँ पर आकर खुदावंद हम तेरे नाम को जलाल दे, और खुदावंद ने ऐसा मुमकिन कर दिया है, मेरा ईमान है। अभी हम सीख रहे थे पेरेंट्स की तरफ से कि माँ और बाप हमारे लिए बड़े वैल्यूएबल है। एक और चीज जरा गौर से सुनिएगा, ये जो बाप और माँ का रिश्ता है ये खुदा ने कभी भी हाथों में रखने के लिए नहीं बनाया। कई बंदे थे हाथ च पैरों च रख देने, खुदा उन्हें भी हिदायत दे। पेरेंट्स का जो रिश्ता है ना तो हाथों में लेने वाला है, ना किसी कंधों के ऊपर रखने वाला है, ये वो रिश्ता मुकद्दस है जो हार्ट के अंदर रखने वाला है। जो लोग माँ बाप को अपने दिल में रखते हैं, याद रखें वो लोग स्टार्स की तरह शाइन करते हैं, सितारों की तरह चमकते हैं। पेरेंट्स एक अनमोल गिफ्ट है, और मैं बताना चाहता हूँ कि ये गिफ्ट की खास तौर पर जो लोग कदर नहीं करते वो शायद इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्होंने कोई माँ प्यो हुंदा जो है तो कदर ही नहीं करते। ये रिश्ता जो है ये अनमोल है, और रिश्तों में ये अनमोल है, रिश्ते बेशुमार है दुनिया के अंदर। एक और चीज मैं गौर कर रहा था, शायद आपने भी कभी किया हो, कि हम खुदा के बाद दुनिया में अगर रिश्तों का नाम लेते हैं, ओपा में बंदा अपनी बूढ़ी का जितना मर्जी प्यार करता हो, लेकिन रिश्ता खुदा ने ऐसा बनाया है कि खुदा के बाद दुनिया के अंदर, दुनियादारी के अंदर अगर कोई मुकद्दस रिश्ता और उसे पहला नंबर दिया जाता है तो वो माँ का रिश्ता। ये बात माँ के भी तारीफ करेगी। एक बार सारे पेरेंट्स के लिए क्लैप करेंगे। हालेलुया। ये रिश्ता देखिए कितना अहम है कि अगर खुदा ने अपने बाद में द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर नंबर 49 के अंदर उसकी 15, 16, 17 ये जो वर्सेस के अंदर मैं पढ़ रहा था कि खुदा बोलता है, खुदा कहता है कि क्या एक माँ अपने शीर खार बच्चे को भूल सकती है? ते बच्चा जिड्डा मर्जी बड़ा हो जाए, माँ प्यो वास्ते दूध पींदा ही बच्चा होता है। देखो ना एक बच्चा फौजी बन जाता है तो उन्हें भी आके चुक के माँ को प्यार लेना। बच्चा जितना मर्जी बड़ा हो जाए, पेरेंट्स को वही दिन याद आते हैं कि असी जी दे पैंपर चेंज करने से, तो असी इन्हू फीडर भर के दुध पियाने से, तो फिर कहने से कि अंदर खूब होएगा दुध। लाड कर देना माँ लाड कर दी कि अंदर की है दुध भी पीती रहता है, पर फीडर दुध प्यार है। तो जो बड़ा बच्चा होता है तो माँ प्यो को कहता है कोई नहीं, वो ताड़ा फर्ज सी। ये बात बड़े गौर से सुने जरा, जितने बाहर में मेरी आवाज पहुंच रही है कि बाहर में आ जाओ अब तक। बड़ी गौर करने वाली बात है। कई दफा बच्चे जब ये बोलते हैं ना मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन एक
खुदा का दास होते हुए खामोशी के अंदर जाकर दिल करता है इनके लिए प्रेयर करें। जब बच्चे ये बोलते हैं बाप को या माँ को कि तुसी सानू पालिया तुहाडा फर्ज सी, मैं कहता हूँ बेसिकली उन बच्चों को माँ बाप की वैल्यू का पता नहीं है, माँ बाप के मुंह से निकलने वाली दुआओं की वैल्यू का पता नहीं। जैसे मैंने पहले बताया कि याकूब ऐसे इसराइल नहीं बना, पिछे माँ दी ते प्यो दी दुआ सी। अच्छा, प्यो दी दुआ तो पहले माँ दी दुआ सी है। याकूब के पीछे बाप ने तो बरकत देनी सी, लेकिन माँ अंदरों अंदर दुआ कर दी, वे छेती कर खाना बना, छेती तेरा प्यो बरकत तेन देगा, छेती कर खाना बना। अंदरों ढिडों दुआ करती पई है कि मेरा पुत्र ब्लेस हो जाए। बाप की दुआ से पहले खुदा माँ की दुआ को भी सुन रहा है, फिर बाप की दुआ को भी खुदा ने सुना। और याकूब को खुदा ने कहा आज से तेरा नाम इसराइल नहीं, याकूब नहीं बल्कि इसराइल, मैं तुझे ये नाम खूबसूरत देता हूँ, बाबरकत नाम देता हूँ। आज हर वो मुल्क ब्लेस है, उन मुल्कों के अंदर यहोवा का हाथ है जहां पर हम देखते हैं कि इस्राएली कौम के लिए प्रे होती है, खुदा वहां पर हाथ बढ़ा देता है। ये खुदा ने बाइबल में कहा है कि जो कोई मेरी कौम के लिए बरकत मांगेगा, अगर तुझे बरकत लेनी है तो फिर डेली क्या करो, खुदावन मैं बनी इस्राएल कौम के लिए बरकत मांगता हूँ, मांगती हूँ। हमने कहना है, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि जंगा ਵੱਜ जान, ਅਸੀਂ ਤੇ अमन पसंद, मसीही तो अमन को पसंद करते हैं। लेकिन चूंकि बाइबल में कहा गया है कि हमने इस्राएल के लिए बरकत मांगनी है, तो जब हम बरकत मांगेंगे तो खुदा हमें ब्लेस करेगा, हमें बाबरकत बनाएगा। जो हमारा टॉपिक है, हम उसी टॉपिक को सीखते हुए लास्ट में ये जरूर अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे, क्या आज तक हमने अपनी माँ की, अपने बाप की वैल्यू को समझ लिया है? आज वैल्यू को थोड़ा सा हमने सीखा है कि ये जो वैल्यू है ये हमें बाइबल बताती है कि माँ और बाप की दुआ से हालात बदल जाते हैं, बंदे की जिंदगी बदल जाती है। याकूब शायद भेड़ा बूढ़ा चलाता रहता, वो ये बागबानी ही करता रहता, लेकिन जब माँ बाप ने पीछे उसकी दुआ की तो उस दुआ का अजर तो बंदा कभी भी अदा ही नहीं कर सकता, कभी अदा नहीं कर सकता। कई दफा लोग कहते हैं ना कि मैं अपनी माँ प्यो दी इन्नी सेवा की थी कि मैं सारा कर्ज अदा करता, फिर भी तू नहीं कर सकता, फिर भी नहीं तू कर सकता। पेरेंट्स की मोहब्बत एक यूनिक है, और दुनिया के अंदर खुदा के बाद अगर माँ का रिश्ता हमें मिलता है तो क्यों ये इस रिश्ते को कदर है, इस रिश्ते को इज्जत दी जाती है, क्योंकि वाहिद ऐसा रिश्ता है जिहदे विच कोई लालच नहीं। है बूढ़ी बंदे का रिश्ता ते बूढ़ी कहने मेरी सुर्खी मुकी, और सुर्खी दे लालच नूं पे है। बच्चियां दा जिहड़ा रिश्ता ना मां प्यो बड़ा बड़ा लालची रिश्ता जे, ते मां ने फिर भी प्यार करना है, ते बच्चे नूं पता है सानू पॉकेट मनी मिलेगी, हमें खर्चा मिलेगा, सानू चीज़ी मिलेगी है, सानू पैसे मिलणगे। ਉਹ ਪਿਓ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन माँ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ कि ਇਹ ਮੇਰੇ कलेजे ਦਾ हिस्सा है। माँ बाप बच्चों से क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि ये हमारी हार्ट से निकले हुए बच्चे। मैं चाहता हूँ आज से हम सब ने पेरेंट्स की दिल से इज्जत करनी। आइए सारी आंखें बंद करेंगे और कहेंगे कि खुदावन तू हमें बाप की माँ की इज्जत करनी सिखा। हाँ खुदावन, हम